Still recording not yet started. We'll wait for recording. Yes, now recording has started. Chalo. Okay, first write down trigonometric table, which is very IMP. So here, everyone knows that sine, like sine theta, cos theta, tan theta, then cot theta, sec theta, and cosec theta. As we have discussed in last lecture, that sine का opposite क्या होगा? Reverse वाला part cosec होगा, right? Cos का क्या होगा? Sec होगा, and tan का क्या होगा? Cot होगा. So if you remember value of sine, so you can easily get it value of cosec. If you remember value of cos, you can easily get it value of sec. And if you remember value of tan, you can easily find value of what? Cot. Clear everyone? So these are the what? Inversely proportional to each other. So पहले हम तीन and now we'll write just the angles 0 degree. Then here we have a 30 degree. Then there is a 45 degree. Then we have 60 degree. And then there is a 90 degree. Clear everyone this? Okay. This is 90 degree. 90 degree means what, students? What is the value of pi? Pi is nothing but you can write 180. So if I consider pi 180, so pi by 2. This is pi by 3. This is pi by 4. This is pi by 6, like this. So sine theta is what? Nothing but sine 0 degree means 0. This is 0. Sine 0 degree means 0. Theta का value suppose अगर 30 होता है तो sin 30 is what? Half. Remember this. Sin 45 is 1 upon root 2. Sin 60 is root 3 by 2. And sin 90 is 1. Clear this everyone? If you remember this, इसका reverse यहाँ पर लिख दो. Start यहाँ पर end में 1 है तो यहाँ पर 1 होगा. Then root 3 by 2 होगा. Then 1 by root 2 होगा. Then half होगा और यहाँ पर हो जाएगा 0. तो हमने क्या किया? साइन थीटा के जो वैल्यूज थे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 के, उसको हमने कॉस थीटा में रिवर्स में लिख दिया. इज दिस क्लियर एवरीवन? Okay, now how to find tan? As everyone knows, sin tan मतलब what? Sin theta upon cos theta, right? So 0 upon 1 would be 0 upon 1. 0 upon 1 क्या होता है स्टूडेंट? 0. एंड 1 upon 0 अगर होगा तो क्या होगा? इनडेफिनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड होगा. सो यहाँ पर दिस इज नॉट डिफाइंड ND, and 0 upon 1 would be 0 and 1 upon 0 would be not defined. So 0 upon 1 यहाँ पर, see what is tan theta? Tan theta is nothing but what? आप लोगों को पता होना चाहिए, which is sin theta upon cos theta. हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, राइट? सो 0 upon 1 would be 0. अब यहाँ पर देखो 1 upon 2 divide root 3 by 2, which is nothing but 1 upon root 3. Clear this everyone? Now what is tan theta value? 1 upon root 2 upon 1 upon root 2 would be 1. Then what is tan theta? Tan 60? Root 3 by 2 upon 1 by 2, which is nothing but root 3. Okay, now look at here. 1 by 0, because sin theta is 1, sin 90 is 1, and cos 90 is 0. If you divide 1 by 0 would be what? Not defined. I'll write ND. ND is not. That is what? Not defined. Okay, यहाँ तक सबको clear हो गया student? Please type yes in the chat box if you are clear. Yes, Jitisha, yes.
Okay, now cot theta means what? As everyone knows, cot theta means what? आप सभी को पता है what do you mean by cot theta? Cot theta which is equal to 1 upon tan theta. Right everyone? तो ये जो tan theta का वैल्यू उसका रिवर्स कर दो. So when you write 0 का reverse, so again that will be 1 upon 0. Again that going to be a not defined. यहाँ पर 1 upon 3 का रिवर्स होगा √3. tan का हमें वैल्यू निकालना है. देन यहाँ का 1 ही होगा. यहाँ का हो जाएगा 1 upon √3. क्लियर दिस एवरीवन? और ये हो जाएगा आपका 0. नॉट डिफाइंड का अगर आप रिवर्स करोगे सो दैट हैज टू बी 0. Now let us come to sec value. How to find sec? As I said, if you know the value of cos theta, so you can easily find value of 1 upon sec theta, right? And this is हम लोगों ने ये फर्स्ट लेक्चर में देखा है. So 1 upon 1 would be 1. यहाँ पर 1 होगा. √3 by 2 would be 2 by √3. So cos का ये √2 हो जाएगा. एंड 1 अपॉन 2 का ये हो जाएगा 2. और यहाँ पर 0 है. सो 1 अपॉन 0 अगेन नॉट डिफाइंड. And finally cosec. Cosec means what? Which is exactly opposite to what? Sin theta, or we can say reverse. So अगर 0 है so 1 upon 0 again यहाँ पर not defined. 1 by 2 का reverse 2 होगा. 1 by 2 का √2 होगा. 2 by √3. और ये 1. So please write down this table. So this table मैं आपको अगर if you remember sin 0 0, sin 30 half, sin 45 1 by √2, sin 60 √3 by 2, and sin 91. If you remember one table, so with the help of one table or one row you can find rest values. Okay, is this clear everyone? लिख लिया आप लोगों ने ये? चलो great. Let me clear this. स्टूडेंट्स आपको सपोज क्वेश्चन लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. tan x which is equal to sin 45 degree cos 45 degree प्लस sin 30 डिग्री. तो हमें क्या करना है? tan x का वैल्यू निकालना है. क्या हो सकता है? तो x का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? तो यहां पर आपको sin 45 डिग्री पता होना चाहिए, cos 45 डिग्री पता होना चाहिए, sin 30 डिग्री पता होना चाहिए. Put the value and just let me know answer.
ओके, जितिशा कह रही है नहीं जितिशा, यू वांट x का वैल्यू इन डिग्री, तो आपका वन आंसर राइट है. सो सी, एज एवरीवन नोज व्हाट इज sin 45 डिग्री, व्हिच इज नथिंग बट 1 by root 2. यस, into cos 45 degree, which is again 1 by root 2, plus what is sin 30, which is half. Is this clear everyone? Sin 45 degree is 1 by root 2. मैंने अभी आपको टेबल दिया है. Cos 45 degree again 1 by root 2, and plus sin 30 degree is what? 1 half. So now 1 upon root 2 into 1 upon root 2 would be what? 1 by 2 plus 1 by 2. तो ये हो जाएगा 1. It means what students? Tan x which is equal to 1. 1. So what is 1? 1 आपको कब मिलेगा? जब आपका x का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? tan 45 डिग्री. क्लियर एवरीवन? जब tan 45 डिग्री है तो tan 45 का डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? 1. It means x is equal to what? 45 degree. Write down this. Clear everyone this? So if you remember the values, it will be very easy to find. Is this clear everyone? Please type yes in the chat box if this clear. Shraddha, Yogesh, Jitisha, Aman. Sir, repeat now again. काय बोलते उमा? रिपीट करा म्हणले. ओके, रिपीट बघ उमा. आपण काय केलंय फक्त हे जे sin 45 डिग्री आहे त्याच्या टेबल मधले व्हॅल्यू पुट केली. sin 45 डिग्रीची व्हॅल्यू किती आहे? 1 by root 2. आणि cos 45 डिग्रीची व्हॅल्यू किती? 1 by root 2 प्लस sin 30 डिग्री हाफ आहे. मग 1 by root 2 इंटू 1 by root 2 किती येणार? 1 by 2 येणार. आणि प्लस पुढे 1 by 2 आहे. या दोघांना ऍड केल्यावर तुला मिळालं 1. मग tan x इज इक्वल टू 1, राईट? मग tan मधला कोणता डिग्री आहे ज्याचं तुला व्हॅल्यू 1 मिळणार? सो ऑब्विसली tan 45 डिग्री, राईट? tan 45 डिग्री बघ त्याची व्हॅल्यू 1 असणार, म्हणजे x च्या ठिकाणी 45 डिग्री. क्लियर? यस सर, यस. ओके ओके, चलो नेक्स्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट सी, बहुत सिंपल एंड बहुत इजी क्वेश्चन आई विल गिव यू नाउ. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 47 degree divide cos 43 degree, sin 21 degree divide cos 69 degree plus cos 13 degree divide sin 77 degree, right? Now try to solve this if you could. मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था. सपोज हियर इफ यू हैव अ sin 47 डिग्री, राइट? So if I want to convert this cos into sines, what I will do, I'll write cos. What do you mean by 43? 43 का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा? 90 minus 47, right? When you subtract 47 from 90, then only you will get 40 degree. So I can write like this: cos 90 minus 47. Yes or no? Same. Sin 21 degree divide cos. Now what you will get? 69 है, तो मतलब 90 में से अगर आपको 69 चाहिए, so what you will do, you will subtract 90, you will subtract 21 from 19, right? So you will get 69. Yes or no? And plus cos 13, which is equal to what? Cos 13, also let it be. What is sin 77? So I can write sin 90 minus 13. Yes or no? Then only I will get 77.
ये सबको क्लियर हो गया, यस और नो? यस, चलो थैंक यू योगेश। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया है, सी यहां पर देख लीजिए, ऊपर साइन 47 है, डिवाइड cos 90 माइनस 47 वुड बी व्हाट, sin 47। ये मैंने फॉर्मूला आपको लास्ट लेक्चर में दिया था, प्लस sin 21 डिग्री डिवाइड cos 90 minus 21, so you can directly write what, sin 21 degree plus cos 13 degree, so what you can do, you can directly write sin, sorry, अब यहां पर cos लिखोगे, cos 13 डिग्री। यहां तक सबको क्लियर हो गया? नाउ व्हाट इज लेफ्ट स्टूडेंट, देखो अब ऊपर वाला और नीचे वाला वैल्यू दोनों सेम है, सो इट मींस व्हाट, दे विल गेट कैंसल। तो ये कैंसिल हो गया, यहां पर बचा 1, प्लस ये कैंसिल हो गया, यहां पर बचा 1, प्लस ये कैंसिल हो गया, यहां पर बचा 1। कितना आंसर आया? राइट डाउन दिस। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट स्टूडेंट्स, ये बेसिक तरीका है करने का। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर थरो विद, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं तो वी नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड इसमें से देयर मे बी 2 क्वेश्चंस इन प्री एग्जाम, सो इफ यू फाइंड दिस टॉपिक इज डिफिकल्ट, सो यू कैन पुट इट फॉर ऑप्शन, अदरवाइज सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ा बेसिक फंडा क्लियर होगा तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो, 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो अब इसी को हम लोग, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, टेक्निक देख लीजिए कैसे करना है, सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। तो यहां पर आपको ट्रिक देता हूं, बहुत बढ़िया ट्रिक मिलेगा आपको आज। एंड ट्रिक देख लीजिए स्टूडेंट, नाउ पे अटेंशन, नाउ हु विल टेल मी, सी यहां पर 47 डिग्री है और यहां पर 43 डिग्री है, इन दोनों का एडिशन कितना होगा स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट। फास्ट, एडिशन ऑफ 47 डिग्री प्लस 43 कितना होगा, एंगल का एडिशन करो। यस, योगेश ने सबसे पहले आंसर दिया है, 47 प्लस 43, देख लीजिए स्टूडेंट्स, 47 प्लस 43 होगा 90 डिग्री, वेरी गुड। यहां पर देख लीजिए सेकंड में 21 प्लस 69 कितना होगा, 21 प्लस 69, what is addition going to be, 21 plus 69, very good, again it is going to be 90 degree। and what about this 13 and 77, yes 90, very good श्रद्धा, 90 डिग्री। तो आप स्टूडेंट्स यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझ लिए, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, आप बोलोगे सर बहुत बहुत बढ़िया टेक्निक है। अब देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, किसी भी दो एंगल का a प्लस बी अगर होता है, अगर उसका एडिशन अगर 90 डिग्री होता है तो वहां पर आपको लिख देना है ओनली 1, बिकॉज दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका एडिशन आपका 90 डिग्री होगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1। क्लियर एवरीवन? तो देखो यहां पर इनका एडिशन 1 हो रहा है तो मैं यहां पर 1 लिख दिया, इनका एडिशन 1 हो रहा है, मैंने यहां पर भी 1 लिख दिया, और इनका भी एडिशन 1 हो रहा है, 90 हो रहा है तो मैंने यहां पर 1 लिख दिया। मतलब 90 डिग्री अगर होता है तो वहां पर 1 लिख देना है बस, और बीच में प्लस डाल दो। क्या होगा आंसर, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3, राइट डाउन। तो ये करते समय आपको पेन भी यूज नहीं करना है, इतना सिंपल है। क्लियर एवरीवन? इफ क्लियर, यस यस कर दीजिए। यस सर। यस यस, बहुत सिंपल है, इससे बढ़िया और बेहतर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा स्टूडेंट। चलो क्लियर, चलो चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग वो ट्राई कर लीजिए। okay, now you try this। sin 43 डिग्री डिवाइड cos 47 डिग्री cos 19 डिग्री डिवाइड sin 71 डिग्री सॉरी माइनस 8
cos square 60 degree. Okay, try to solve this fast. तो क्या आप लोगों का बहुत सिंपल है ये। श्रद्धा का आंसर 0 आया, वेरी गुड श्रद्धा। ओके, लेट मी चेक फर्स्ट। सी, आप लोगों को मैंने कभी एक टेक्निक पढ़ाया है, होप सभी को याद होगा टेक्निक क्या है। टेक्निक कि अगर यहां पर भी अगर आपको दो एंगल दिखते हैं और उन दो एंगल का अगर एडिशन 90 डिग्री होता है, 47 प्लस 43 90 होगा, तो वहां पर 1 लिख दो। प्लस यहां पर भी देखो 90 डिग्री होगा तो यहां पर भी 1 लिख दो। माइनस अब ये 8 इंटू, अब आपको cos 60 कितना वैल्यू, कौन बताएगा मुझे cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? एनीवन फ्रॉम योर साइड, cos 60 कितना होगा वैल्यू? अपॉन रूट 2। नहीं नहीं, एनी प्लीज प्लीज प्लीज, कितना होगा? एग्जैक्टली, नॉट 1 अपॉन रूट, इट शुड बी 1/2। यस, हाफ। वेरी गुड भाग्यश्री, हाफ होगा। सो व्हाट आई विल डू, cos 60 की जगह पर मैं हाफ लिख दूंगा, और यहां पर देखो ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, बस इतना ही करना है। तो स्टूडेंट्स 1 + 1 2 हो गया, -8 इंटू ये हो गया 1/4। सो 4 1 जा 4 2 जा, सो 2 - 2 वुड बी व्हाट, 0। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? 0 वैल्यू आया आप लोगों का? यस, वेरी गुड जितिशा। चलो स्टूडेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट सी, 3 cos, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cos 80 डिग्री cosec 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री एंड cosec 31 डिग्री। चलो टेल मी फास्ट, व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी? Okay, wait a minute, student. Wait a minute. Chalo, great. Hope this is clear, everyone. So what you will write? Okay, as everyone knows, ये 3 तो as it is होगा, 3 into. Now यहां पर देखो ये 80 डिग्री है और ये 10 डिग्री, राइट? इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री। तो मैं यहां पर डाल दूंगा 1 प्लस यहां पर 2 है, ये 2 यहां पर लिख दो, इनटू ये 59 डिग्री है और ये 31 डिग्री है। इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो यहां पर भी आपको मिलेगा 90 डिग्री। सो ये होगा 1। सो फाइनल स्टूडेंट आंसर क्या मिला? 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 5। आया 5 सबका क्लियर एवरीवन?
Okay, great. नेक्स्ट वाला ट्राई करो. cot 10 degree, cot 20 degree, cot 60 degree, 70 degree, yes, cot 80 degree. Find fast. Sure. What is answer going to be, students? First देखो 90 कहां पर मिल रहा है? ये 70 है. Let me use another pen. This is 70, this is 20, right? तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री. तो इसका मिलेगा आपको 1. Am I right or not? ये 80 डिग्री है और ये 10 डिग्री. तो इसका भी मिलेगा आपको 1. तो अगर देखो स्टूडेंट्स उन सबका 1 मिलेगा तो खाली ये एक अलग रह गया, राइट? तो 1 into 1 into cot 60 डिग्री बचेगा. तो 1 into 1 into cot 60 डिग्री सभी को पता है क्या है? 1/√3. तो आंसर इज व्हाट? 1/√3. राइट डाउन दिस. क्लियर एवरीवन? ओके, टेक अनदर प्रॉब्लम. अब थोड़ा अलग टाइप का है. सर वेट काय उमा? 2 मिनिटं. हो, थांबतो. झालं. Okay. Thank you so much. Okay, now we'll see. Okay, you need to find the value of tan 27 degree, cot 63 degree, tan 27 degree, sin 25 degree, plus cos 65 degree. Okay. Try to solve if you can. Now see, let me tell you. Now suppose if you write here 1 and you can write here 1, but what you will write value for 27 degree, which is unknown to everyone. So we cannot apply the earlier one formula. So the basic formula everyone should know. What is that? Tan 27 degree plus, I can write cot like this, 90 minus 27 degree, yes or no? Divide, write down tan 27 as it is. And sin 25 degree plus cos 90 minus 65. Wait a minute. Sin 25 degree cos 65, right? So this would be cos 90 minus 25. Remember this. Okay, now see, you can easily write tan 27
plus cot 90 minus 27 would be what? Tan 27 divide, यहां पर tan 27 है into sin 25 degree cos 90 minus 25 again sin 25. So automatically you can write what? 2 sin 25. इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा? sin 25 डिग्री. तो ये sin 25 और ये sin 25 would be what? 2 sin 25 degree. Yes or no? Now what we can write? Tan 27 plus tan 27. You can write 2 tan 27 degree divide tan 27 degree into 2 sin 25 degree. So see, look at this. This tan 27, this will be cancelled. ये 2 और ये 2 cancelled हो गया. So finally answer is what? 1 upon sin 25 degree, which is nothing but what? Sin का उल्टा क्या होता है students? What is the opposite of sin? Cosec 25 degree. Write down. Clear everyone this? So this is, sometimes you need to use basic also. Is this clear, student? ये आप लोगों ने लिख लिया? Okay, next see, if, now these are another type of questions. If cos raised to 4x plus cos square x, which is equal to 1, and हमें find करना है, find the value of tan raised to 4x plus tan raised to 2x. Okay, now students, first pay attention. What we can do here, see, cos raised to 4x हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया, right? So I can write like this: cos raised to 4x, which is equal to 1 minus cos square s. Yes or no? ये मैंने यहाँ पर लेके माइनस कर दिया. Correct everyone? So what we can get? Cos raised to 4x, which is equal to 1 minus cos square क्या है students? Sin square x. ये आपको फॉर्मूला पता है, right? Sin square x plus cos square x, which is equal to 1. What is the formula? Sin square x cos, which is equal to 1. तो अगर मैंने ये cos square अगर मैंने यहाँ पर लेके गया तो माइनस हो जाएगा. तो 1 minus cos square x, which is equal to what? Sin square x मैंने यहाँ पर लिख दिया. Is this clear everyone? यहाँ तक सबको क्लियर होगा? Yes or no? Okay, now pay attention. Okay, now tan raised to 4x. So everyone knows what is tan raised to 4x. Tan raised to 4x can be written as, what is tan value? Sin upon cos. So sin raised to 4x upon cos raised to 4x, correct everyone? Plus sin square x divide cos square x. ये क्लियर हो गया यहाँ तक? Now students, यहाँ पर raised to 4 है और यहाँ पर raised to 2 है. So what I will do, to equal base में यहाँ पर cos square
2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूल क्या कहता है, इफ यू मल्टीप्लाई डाउन तो सेम नंबर से ऊपर भी करना होगा, तो यहां पर भी होगा cos square x. Yes or no? So what is next going to be? See now यहाँ पर क्या होगा, ये cos raised to 2x और ये cos raised to 2, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, cos raised to 4x. तो यहाँ का बेस और यहाँ का बेस क्या हो जाएगा, इक्वल. अगर बेस इक्वल होगा तो ऊपर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आई विल गो फॉर व्हाट, एडिशन. सो व्हाट इज एडिशन गोइंग टू बी, sin raised to 4x प्लस sin raised to 2x और ये हो जाएगा cos raised to 2x डिवाइड बाय व्हाट, cos raised to 4x. होप दिस क्लियर एवरीवन. Yes. Now what I can do, see, अब मैं यहां से sin raised to 2x को बाहर ले लूं, तो अगर मैंने इसको बाहर ले लिया sin raised to 2x को, तो यहां पर sin raised to 4x है, तो यहां पर क्या बचेगा, sin raised to 2x प्लस यहां पर क्या है, cos raised to 2x डिवाइड बाय व्हाट, cos raised to 4x. So clear this everyone? Okay. Now students pay attention. See, sin raised to 2x plus cos raised to 12, sin square x plus cos square x, ये हमेशा 1 होता है. So यहाँ पर बचा के add and I'll write here sin square x divide what is the value of cos square 4x. देखो यहाँ पर मिला है आपको, what is the value of cos raised to 4x, which is nothing but sin square x. तो फाइनली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको एंड में मिलेगा 1. राइट डाउन. सो ये अगर आप लोगों को फॉर्मूलेस पता रहेंगे तो ये आप लोग 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स में आराम से कर सकते हो, बिकॉज नाउ आई एम टेकिंग टाइम बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, बट व्हेन यू डू इट योर ओन वे आई डोंट थिंक सो इट विल टेक टाइम. क्लियर एवरीवन दिस? Clear everyone? Okay, great. Next, if 7 sin square theta plus 3 cos square theta which is equal to 4, और हमें then find value of cos theta find करना है, और वो कैसे निकालना है, 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री. यस, मतलब आपका जो थीटा का वैल्यू रहेगा इट शुड बी मोर देन 0 डिग्री और इक्वल टू 0, बट less than 90 degree or equal to 90 degree. So it should be somehow between 0 and 90 degree or equal to 0 and 90. It should not be less than 0, should not be more than 90 degree. Yes. Is anyone who can try to solve this? Okay, now let's see. Now let me explain you कैसे करोगे. देखो बहुत सिंपल है. Okay, see यहाँ पर 3 cos square theta है. What I can do student here, ये जो 7 sin square theta है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 sin square theta plus 3 sin square theta. Yes or no? मैंने क्या किया, 7 sin square theta को मैंने स्प्लिट कर दिया. Yes or no? Please type yes in the chat box if I can write like this. Very good योगेश. प्लस आगे क्या दिया है, 3 cos square theta which is equal to 4. Okay. Now what I will do, देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो गया 4 sin square theta प्लस 3 कॉमन हो गया, अंदर बचेगा sin square theta प्लस cos square theta is equal to 4.
अब आप सभी को पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए फास्ट। वेरी गुड योगेश, वेरी गुड। योगेश ने सबसे पहले बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। सो मैं यहां पर 1 लिख सकता हूं, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3। ये जो 3 है प्लस है वहां पर जाके माइनस हो जाएगा, तो माय आंसर इज गोइंग टू बी यहां पर 1 हो गया। नाउ व्हाट आई कैन डू, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1/4 होगा, ये 4 जो यहां पर मल्टीप्लाई है जो यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, तो व्हाट इज साइन थीटा विच इज गोइंग टू बी हाफ। ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, थीटा का वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा तो मुझे हाफ मिलेगा फास्ट। विच डिग्री इट शुड बी, इट शुड बी 0 डिग्री, साइन 0 साइन। वेरी गुड योगेश, योगेश ने बोला सर अगर आप थीटा का वैल्यू अगर आप 30 डिग्री लेते हो तो साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू आपको मिलेगा हाफ। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये कंफर्म हो गया कि व्हाट इज थीटा वैल्यू गोइंग टू बी 30 डिग्री। तो अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है विच इज देखो विच इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, तो यहां पर मैं थीटा की जगह पर क्या पुट कर दूंगा 30 डिग्री। तो व्हाट इज cos 30 डिग्री वुड बी, टेल मी फर्स्ट व्हाट इज cos 30। मैंने आपको चार्ट दिया है ऑलरेडी। cos 30 का divided by 2. इट शुड बी व्हाट √3 बाय, राइट डाउन दिस। आपको और आपको वही फाइंड करना था। Clear everyone this? चलो ओके, नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई, रूट में आपके पास सेक थीटा -1 डिवाइड सेक थीटा +1। करो सिंप्लीफाई, कैसे करोगे इसे सिंप्लीफाई। नाउ सी यहां पर कैसे करोगे, आई कैन राइट, ये हमें सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सेक थीटा -1 डिवाइड सेक थीटा +1। अब व्हाट आई विल डू, सी अब ये रूट में नंबर है, अगर आपको रूट रिमूव करना है तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, उसका रैशनलाइजेशन। तो व्हाट इज रैशनलाइजेशन, हमने पढ़ा है सर्ट्स एंड इंडाइसेस में। तो इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा कि अगर नीचे प्लस है तो आप उसकी जगह पर क्या करोगे माइनस। क्लियर एवरीवन, तो ऊपर भी माइनस से ही होगा मल्टीप्लाई माइनस। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया ना। रूट में देखो क्या होगा, ऊपर आपको मिलेगा सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर डिवाइड ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। व्हाट इज द फॉर्मूला, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहां पर होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। होप दिस क्लियर एवरीवन। So this can be directly written sec theta -1 whole square divide what is sec square theta -1 would be what, tan square theta। ये अपना फॉर्मूला ये है। So at the end what is going to be left students,
आप जब इसको सेपरेट करोगे तो ये स्क्वायर रूट और ये निकल जाएगा और इसका ये निकल जाएगा, तो फाइनली बचेगा सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड टैन थीटा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? नाउ यू कैन स्प्लिट लाइक दिस, सेक थीटा डिवाइड टैन थीटा। आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 1 टैन थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके नाउ अब इसको आप लोग कैसे कर सकते हो? सेक का मतलब होगा 1 कॉस थीटा एंड टैन का मतलब होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? और माइनस 1 टैन थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा। नाउ स्टूडेंट देख लीजिए, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या? 1 sin थीटा, राइट हियर 1 sin थीटा माइनस कॉट थीटा। सो 1 sin थीटा का मतलब क्या होता है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, राइट डाउन दिस। सो बेसिक है, कुछ इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलेस बस। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमेशा टाइम स्क्वायर होता है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ था पिछले टाइम। होप दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? Okay, great. Okay, now try to solve this question. Simplify 1 plus sin A divide 1 minus sin A. सेम क्वेश्चन है, चलो फटाफट कर लीजिए, ट्राई करो।
Okay, now students see. Okay, anyone who has got the answer? Again, what we'll do same. यहाँ पर हम लोग rationalization करेंगे 1 plus sin A. नीचे माइनस है तो ऊपर ऑब्वियसली प्लस होगा 1 माइनस साइन ए और उसका रैशनलाइजेशन होगा 1 प्लस साइन ए उल्टा होगा राइट और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा बस इतना ही करना है देन व्हाट यू कैन डू राइट डायरेक्टली राइट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होगा ऊपर नीचे होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर है बिकॉज ए माइनस बी ए प्लस बी वुड बी ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा यस सो 1 प्लस साइन स्क्वायर है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर ए राइट और ये हो जाएगा सो यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है now this root this 2 and this will get cancelled right so what is left 1 plus sin a divide cos a yes or no so what we can write now I can write like this 1 upon cos a split कर देता हूं plus sin a upon cos a right so 1 upon cos a would be sec a and sin a upon cos a would be tan a write down this clear this everyone okay is this clear everyone now we'll have a final question and obviously we'll require one more session for this topic this is not that big but you need to remember formulas otherwise topic बहुत easy है suppose students अगर ये question अगर आपको आता है now just let me know logic answer if you use logic if sin phi theta which is equal to cos 20 degree यहाँ पर 0 डिग्री लेस देन थीटा और लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए थीटा का वैल्यू ओके तो आपको फाइंड करना है फाइंड थीटा वैल्यू कैसे करोगे स्टूडेंट टेल मी पास हु विल लॉजिक अगर आप यूज करोगे तो बहुत इजी होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है okay now student tell me चलो I'll just give you hint now tell me see अब मुझे बताइए मैंने आपको कभी फॉर्मूला बताया था दो एंगल का एडिशन कितना होगा स्टूडेंट्स अगर दो एंगल का a प्लस b दोनों का अगर एंगल का एडिशन 90 डिग्री होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 यस और नो तो एग्जैक्टली तो अब देखो यहां पर एक एंगल है फाइ थीटा और यहां पर एक एंगल है 20 डिग्री तो इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए स्टूडेंट 90 डिग्री होना चाहिए यस और नो so what I can do directly I can write phi theta plus 20 degree which is equal to what 90 degree yes or no
सो ये 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 5 थीटा, 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सो व्हाट इज 5 थीटा का वैल्यू अगर 70 डिग्री है स्टूडेंट्स, 5 थीटा का वैल्यू अगर 70 डिग्री आया है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 70 डिवाइड 5, 14 डिग्री। राइट डाउन, बस इतना सिंपल था स्टूडेंट्स। क्लियर एवरीवन? Yes or no? क्लियर एवरीवन? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। तो अब सभी को क्लियर हो गया रहेगा, राइट एवरीवन?